Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the components of environment. What are the three important components of environment? The three important components of your environment are: one is the physical part, another is your biological, and the third one is the social. First, we will have a detailed discussion about the physical component. What is the physical component? It includes physical component of your environment includes the non-living factors. जो भी environment में आपके non-living things आ रहे हैं, for example, soil है, water, air, temperature, light, humidity, mountains, everything जो भी आपके environment में जो non-living part है, that is simply the physical component. Besides the name physical, हम इस component को क्या बोलते हैं? It's also called the abiotic. Bio means life, biotic is living, and abiotic means non-living. This physical component is also called the abiotic component of the environment. And mostly, where is the role to play of this very component? क्या करता है? ये determine करता है type of the habitat, यानी living conditions, यानी आपकी कैसी environmental conditions है और कौन सा उन environmental conditions में कौन species thrive करेगा, यानी it determine करता है type of habitat कैसा होगा. Obviously that means कैसा temperature है, क्या ये arid है, arid means too dry है, conditions है, कैसा heat है वहाँ पे, ठीक है, माउंटेनियस है, कैसी टोपोग्राफी वहाँ पे है. सो सर्टनली जो यानी इससे आपकी मोस्टली जो क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस है, भी जो भी एटमॉस्फेरिक जो भी आपकी सराउंडिंग कंडीशंस है, वो कौन आपको वहाँ पे सेट करता है? दैट इज योर फिजिकल कंपोनेंट. सर्टनली दिस फिजिकल कंपोनेंट विल डिटरमिन द टाइप ऑफ हैबिटेट या और व्हाट विल बी द लिविंग कंडीशन ऑफ द ह्यूमन population or other populations जो वहाँ पे survive करेंगे on in that very habitat. That's your physical component. or the abiotic components determine the type of habitat. यानी for example temperature बहुत high, like in the desert temperature is too high, ठीक है, या polar में बहुत cold conditions रहती है. So that means ये जो physical component है, क्योंकि physical component में आपके temperature, humidity, climate conditions आ रही है, तो certainly इससे आपका habitat type भी determine होता है. Next is this physical constituent or the component of environment is further divided into three parts. अब जो physical component है, that is further divided into three main categories. One is किन किन parts में इसको divide किया गया है. One is the atmosphere, next is hydrosphere, hydro means water, and the next is your lithosphere. First we will have detailed discussion about the atmosphere. What is atmosphere first? Atmosphere is simply जो आपका ये large vast expanse जो gaseous envelope है, that surrounds the wraps your earth around. That is the atmosphere. Atmosphere क्या है? Envelope of the gas जो आपको surround कर रहा है, किसके? आपके earth को, उसको क्या हम बोलते हैं? That is the atmosphere. The envelope of the gas that surrounds your earth all around is called the atmosphere. And atmosphere it consists of different gases होते हैं इसमें, like nitrogen, oxygen है, and different gas. Out of these different gases जो most dominating portion है और proportion है, percent है, कौन वो contribute करता है? Total contribution most 99% इसका है, that's of nitrogen and oxygen. Besides this nitrogen, oxygen, there are some other gases like argon, carbon dioxide is there, hydrogen, helium, neon, ozone, but that is present in very trace portions, right? Besides these gases and atmosphere क्या है? इसमें क्या है? It's mixture of further क्या कैसे present होता है? There is present water, vapors, and the dust particles are also present in your atmosphere. And further this atmosphere क्या है? It's further divided into the different layers. ये जो आपका atmosphere है, जो आप gaseous envelope देखते हैं, ठीक है, it is not just one layer जो आपको लग रहा है आपके अर्थ ऊपर, जो आपके अर्थ के सराउंडिंग में जो भी है कवर कर रहा है, ठीक है, that's of different layers. कौन कौन से इस atmosphere की है? One is the first we will start with, जब हमें from the above the earth we will start, that's first कौन सा layer आता है? That's troposphere, stratosphere, then mesosphere, it's followed by the thermosphere, exosphere, and the ionosphere. Now the first layer,
the lowest atmospheric layer, that's called the troposphere. And जो इसकी average height है that's रहती है, though it fluctuates, it varies in from in winter and summer, ठीक है, though almost, but what is the average height क्या रहती है troposphere की, that is the 16 kilometer, and that is the average. But at poles it's only 8 kilometers thick, and at equator it's 18 kilometers thick. So here the question arises, why this thickness varies from equator to the poles. Poles पे क्या है, thickness कितनी रहती है, that's around 18 kilometer, and in at this poles it's just only 18 kilometer. Why there is the variation in the in this variation क्यों दिखा रहा है, it's 18 kilometer, sorry 8 kilometer at the poles, 18. Why? Certainly why, देखो कि ये कैसे इम्पैक्ट होता है. इक्वेटर जो रीजन आपका होता है दैट इज़ अ वेरी हॉट, जो अभी आपका अर्थ है वहाँ बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसके साथ जो उसके बाद कांटेक्ट में ऊपर एयर ले रहा था दैट इज़ वेरी हॉट, यानी उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर जो एयर वहाँ पे जो उसके साथ कांटेक्ट अर्थ में आएगा वो बहुत आफ्टर ग्रेटर एनर्जी ज़्यादा है, सडनली इट गोज टू आफ्टर ग्रेटर एक्सटेंट रादर देन द वन एट द पोल्स. इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जो एयर पार्सल या एयर लेयर जो भी एयर इसके साथ जो भी मॉलिक्यूल्स वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ड्यू टू द जो कॉन्वेंशनल जो भी कन्वेक्शनल करंट्स होंगी उनसे क्या हो जाएगा, दैट गोज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. इक्वेटर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जो एयर लेयर्स इसके साथ कांटेक्ट में है तो उन टेम्परेचर उनका ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा, मोशन ज़्यादा, तो दैट गोज अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट. जो भी इसका एसेंट है राइज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे इक्वेटर पे इसीलिए क्या दिखाता है, ओवरऑल थिकनेस इसकी ज़्यादा है. सो एंड ऑब्वियसली द रिवर्स प्रोसेस विल फॉलो हियर. पोल्स पे क्या रहता है, इस कोल्ड कंपेरेटिवली द जितना कहाँ पे है इक्वेटर पे है, तो पोल्स पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर एट द पोल्स, वहाँ पे क्या जाएगा, ऑब्वियसली जो एयर पार्सल है जो भी कॉन्टैक्ट अर्थ के साथ जाएगा टेम्परेचर विल बी लेस, जो उसका मोशन है जो मूवमेंट है या एसेंट जो राइज होगा दैट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द इक्वेटर. इसीलिए क्या दिखा रहा है, सो दैट्स व्हाई देयर इज थिकनेस वेरीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, क्योंकि जो भी हीट है ये ट्रांसफर जो अर्थ से कहाँ से जाएगा अप टू द यहाँ टू द एयर, that varies from equator to poles. Next is the height of troposphere at a given latitude is greater in summer than in winter. यानी अगर हम देखेंगे across your this across the globe देखेंगे, ठीक है, latitudinal variation देखेंगे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, the height जो भी इसकी troposphere है that is greater in summer. Again the same concept, why, क्योंकि समर में क्या होगा, आपकी अर्थ जो है वो ज़्यादा वार्म है, अर्थ से कहाँ जाता है, अर्थ से जो है आप एटमॉस्फेयर कैसे वार्म होता है, सन से रेडिएशन आती है, रेडिएशन आपका अर्थ ट्रैप करता है, अर्थ ट्रैप करने के बाद कुछ रेडिएशन फिर वापस रिमिट करता है, जो रेडिएशन रिमिट होती है वो ट्रैप करता है बैक योर एटमॉस्फेयर एंड मेक्स योर एटमॉस्फेयर वार्म, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, समर में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, हाई एनर्जी रेडिएशन जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, यानी तो जाएगी कहाँ पे जाएगी, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, दैट इज व्हाट हैपेंस यूजुअली जो हमारे सन से आती है दैट इज द शॉर्ट वेव, जो अर्थ इमिट करता है दैट इज लिटिल द लॉन्ग वेव रेडिएशन. अब कितना है, मगर समर में ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, जो रेडिएशन है ओवरऑल कितना है वो ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर इन द विंटर. सो व्हाट विल हैपन, समर में रेडिएशन ज़्यादा आ रहा है, हीट ज़्यादा ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली जो एयर पार्सल्स है जो एयर है उसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, जितना टेम्परेचर है उतना ही एसेंट होगा, उतना ही राइज होगा, किसका होगा, एयर का होगा, ऑब्वियसली इट्स ऑफ ग्रेट, इट विल बी सर्टेनली ऑफ ग्रेटर height या और thickness in the summer as compared to the winter. Next important thing to remember about your this troposphere layer of the atmosphere is, इसमें क्या होता है, when we go with height
टेम्परेचर जो है इस ट्रोपोस्फेयर का वो डिक्रीज होता है. That is a normal. The higher we go, the cooler it is. What happens? Temperature usually क्या होता है? There is a decrease in the temperature with increase in the height. जितना हम ऊपर जा रहे हैं atmosphere में तो temperature what will happen? But remember criteria. The situation is conditions are different. So certainly the situations are different in different layers. So but usually क्या होता है? Normal क्या है? Normal process क्या है? Normal way क्या है? The normal is कि टेम्परेचर विद हाई टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज. ठीक है, इस दर डिक्रीज होने को जो बोलते हैं. एंड रफली इन द ट्रोपोस्फेयर में कितना होता है? फॉर 1 किलोमीटर ऑफ एसेंट, यानी 1 किलोमीटर राइज जो आपका हो जाएगा एयर, देयर इज एट व्हाट रेट जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 6.4 डिग्री सेल्सियस. 6.4 डिग्री सेल्सियस में आपको 1 किलोमीटर ऑफ राइज जा रहे हैं इन योर ट्रोपोस्फियर, तो आपका क्या है 6.4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है. एंड दिस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट in this layer at a rate of this 6.4 for 1 kilometer of ascent, this is known as the lapse rate. Remember the term, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मगर किस रेट से हो रहा है? एट दिस वेरी रेट, उसको हम बोल रहे हैं लैप्स रेट. दिस रेट, इस रेट से डिक्रीज होना 6.4 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है फॉर एवरी 1 किलोमीटर ऑफ एसेंट. दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर, दिस रेट एट दिस वेरी रेट जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं लैप्स रेट. नाउ why this happens? हम जो ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है? when we go with the height, what happens? There is a drop in temperature. क्यों हम why we are witnessing this drop in temperature? Why? What happens there? One thing with the why, look, जो we know the air को क्या प्रॉपर्टी होती है? ये एक्सपेंड भी होता है, ये कंप्रेस भी होता है. what happens जब हमें नीचे नीचे होकर लोअर पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, लोअर लेयर से स्टार्ट करेंगे, देयर इज मोर ग्रेविटेशनल फील्ड. जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है दे आर मोर हेल्ड टुगेदर क्लोज टू योर अर्थ. तो सर्टेनली जो क्लोज टू द अर्थ वो क्या है? डेंसिटी इज मोर. सो देयर आर मोर चांसेस, वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा हम डिसेंट जो आएंगे नीचे की ओर, अगर हम आएंगे टुवर्ड्स द अर्थ एटमॉस्फेयर की, we will come downwards to of this atmosphere towards the earth. what happens? There is a compression. why? क्योंकि जो आपका है एयर का डेंसिटी इंक्रीज होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट अट्रैक्शन उतना ज़्यादा है. इंस्टेड व्हाट हैपन्स, अब जितना हम ऊपर असेंड जाएंगे, वी विल गो विद द हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर, तो हम उतना ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर जा रहे हैं. देयर इज मोर एंड मोर रेयरफेक्शन, रेयर उतना आपका एयर हो रहा है. तो सर्टनली यानी एयर डेंसिटी कम हो रही है. एयर डेंसिटी जब कम होगी तो सर्टनली एयर की क्या होती है प्रॉपर्टी? कंप्रेशन भी दिखाता है एज वेल एज द देयर इज एज वेल एज एक्सपेंसिबल. तो क्या होता है? देयर इज द एक्सपेंशन, यानी हम ऊपर हाइट विद वी गो विद द हाइट, व्हेन वी गो विद द हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर, वहाँ क्या होता है? एयर एक्सपेंड्स, क्योंकि एयर वहाँ डेंसिटी क्या होती है विद हाइट? देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी, तो ये एक्सपेंड होगा. व्हाट हैपन्स? एंड ऑलवेज ऑन द एक्सपेंशन. ठीक है, when there is no exchange from the surroundings. what happens when there is no exchange of the heat from the surroundings? So on expansion जो भी होता है सिस्टम का, what happens there is a drop in the temperature. जिसको जिसी this is also there are some other reasons as well. This is one of the reasons why there is a drop in the temperature when we go with height in this very layer. क्यों होता है? क्योंकि हम when we go up with the height in this layer, वहाँ क्या होता है? you need to remember air expand होता है. air expand क्यों होता है? क्योंकि वहाँ डेंसिटी कम होती है. डेंसिटी ऑब्वियसली क्यों होती है? हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहे हैं. जितना हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ उतनी डेंसिटी कम होगी, तो उतना डेंसिटी कम होगा तो एयर विल इजीली एक्सपैंड. एंड एक्सपेंशन व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ठीक है, व्हाट विल हैपन? there is for example there is no gain from the surroundings. on expansion what will happen? there is the drop in the temperature, there is the cooling of the air. ठीक है, this drop in temperature is known as the, with this very rate is known as lapse rate. This is the reason. Next is, this is a very important layer of your atmosphere for man, especially why जो भी आपके important atmospheric processes है वो सब कहाँ पे हो रहे हैं? that is in this very troposphere. क्यों हो रहे हैं? जो भी आपकी क्लाइमेटिक या वेदर कंडीशंस है that all happen in this very troposphere. why?
बिकॉज जो ट्रोपोस्फेयर है सर्टनली इट इज़ इमीडिएटली लाइक या इट्स इन कॉन्टैक्ट विद योर अर्थ के बाद जो भी आपके पोल्यूटेंट्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, वो अच्छा वेरी सिग्निफिकेंट वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन इज देयर, वो सब कहाँ पे रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल। बाकी आगे भी एक्सपेंड होगी, बट यहाँ पे क्या होता है, हियर इज द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन इन योर ट्रोपोस्फेयर। यहाँ आपको डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे। वाई डस्ट पार्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम एक कंडीशन लेंगे क्लाउड फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, डस्ट पार्टिकल्स का होना, क्योंकि तभी जहाँ पर क्या होगा, व्हेन देयर इज dust particles are available, what will happen, only then there is this vapors का क्या हो जाता है later कंडेंसेशन। सो यहाँ पे क्यों हो जाएगा कंडेंसेशन, क्योंकि तब भी जब आपके उसको अवेलेबल होंगे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन योर ट्रोपोस्फेयर। सो ऑल योर क्लाइमेटिक एंड बिकॉज क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर दैट इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ दिस टाइम योर सिलेबस, ठीक है, we have to keep it limited as per your syllabus. What happens, you just need to remember यहाँ पे क्या होता है, इन द ट्रोपोस्फियर वहाँ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और क्लाउड फॉर्मेशन के लिए डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर्स का होना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज दीज क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस आर कंसर्न। नेक्स्ट इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, द लेयर। नेक्स्ट इज क्या होता है, ट्रोपोपॉज। जो अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। जो अपर लेयर है या अपर लिमिट जो है ट्रोपोस्फेयर का, रिमेंबर उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। जो इसको सेपरेट करता है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम stratosphere, the layer that separates it from stratosphere is called tropopause. After troposphere, the next layer in atmosphere is stratosphere, and this layer extends upward from the troposphere to about 50 kilometer, and this is thicker at poles than at the equator. ट्रोपोस्फेयर में क्या होता था, वो थिकर कहाँ पे है, इक्वेटर पे रादर देन एट द पोल्स। व्हाई, बिकॉज सर्टनली जब उसका मैक्सिमम पोर्शन है थिकनेस किसकी है, बिकॉज जो ट्रोपोस्फेयर है वो इक्वेटर पे क्या है, दैट इज थिकर, ठीक है। ये इसका वाइस वर्सा है, वाई, क्योंकि जो इसका पोर्शन है यहाँ पे ये पोल्स पे क्या है, इट्स मोर थिकर, क्योंकि वहाँ जो मैक्सिमम पार्ट है पहले ऑक्यूपाई थिकनेस कौन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ट्रोपोस्फेयर। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो पोल्स पे क्या वहाँ पे उसका ज़्यादा हाइट है, ठीक है, कौन ले रहा है, इसका ट्रोपोस्फेयर का। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीजन, तो ये ट्रोपोस्फेयर पे स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, इट इज थिकर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे कौन है ऊपर, मैक्सिमम पार्ट किसने ऑक्यूपाई किया है, वहां पे ट्रोपोस्फेयर ने। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, वहां हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा, देयर इज वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है विद हाइट। हियर इज अ राइज, यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, देयर इज राइज इन टेम्परेचर विद हाइट, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल ट्रेंड, नॉर्मली क्या होता है, हायर यू गो तो कोलर इट इज, हम जितना विद हाइट एसेंड हो जाएगा, जितना राइज हो जाएगा, देयर इज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर। व्हाट हैपन्स हियर, क्योंकि इस स्ट्रेटोस्फेयर में है, यू ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ यू नो, यहाँ पे क्या होता है, ओजोन। तो जो आपके हाईली एनर्जेटिक यूवी रेडिएशंस होती है, जो आपके कहाँ से, सन से आती है, वो यहाँ पे क्या कौन करता है, एब्जॉर्ब ओजोन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ओजोन, जो लेटर एब्जॉर्ब करता है द यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन, तो उस वजह से क्या हो जाता है, व्हाट हैपन्स, तो उस वजह से क्या व्हाट हैपन्स, तो ड्यू टू जो यहाँ पे ओजोन है दैट एब्जॉर्ब्स द हाईली एनर्जेटिक यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन, दैट इज द रीजन हियर इज अ राइज इन द टेम्परेचर एज वी गो विद द हाइट। नेक्स्ट इज लेयर जो है, दिस इज एक्सट्रीमली ड्राई होता है, देयर वेरी लेस वाटर वेपर होता है यहाँ पे प्रेजेंट, एंड क्लाउड्स, वाई, क्योंकि क्लाउड्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है होना, वाटर वेपर जो कंडेंसेशन दिखाते हैं अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स। सो सर्टनली when there are no dust particles, very less, or practically there are no water vapor particles, so certainly there is no cloud formation. So the next is, एंड जो जिसमें मैक्सिमम पोर्शन जिसका है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो ओजोन रहता है इन दिस वेरी लेयर, उसको क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर। एंड द नेक्स्ट इज वहाँ ट्रोपोपॉज था जो अपर लिमिट था, हियर द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर जो सेपरेट करेगा इट फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर दैट इज मेसोस्फेयर, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज।
Next is your mesosphere. Mesosphere that lies immediately above the stratosphere and extends up to height of the 80 kilometer. Here what happens, जो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है विद हाइट. कितना अप टू जाएगा, इट विल ड्रॉप अबाउट -90 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है. एंड हियर इज टेम्परेचर ड्रॉप होता है मेसोस्फीयर. तो यूजुअली क्या होता है, व्हेन वी गो हायर, ट्रोपोस्फीयर में ड्रॉप हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर में भी ड्रॉप होता है, मगर व्हाट हैपेंस देयर इज द ओजोन. ओजोन क्या करता है, वो हीट रेडिएशन दीज यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सन. ओजोन जिसकी प्रॉपर्टी वो यूवी को एब्जॉर्ब करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ टेम्परेचर राइज देख रहे हैं. बट इन मेसोस्फीयर वहाँ पे अगेन द नॉर्मल ट्रेंड इज फॉलो, देयर इज अ ड्रॉप इन द टेम्परेचर. इतना ड्रॉप होता है, अराउंड -90 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है इन द मेसोस्फीयर. इन मेसोस्फीयर क्लाउड्स आर ऑब्जर्व्ड. यानी अब हम बोलेंगे, अभी तक तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स नहीं बन रहे थे, देयर वर नो डस्ट पार्टिकल्स, तो उनने स्ट्रेटोस्फीयर को जंप करके कैसे आए मेसोस्फीयर. हियर सम meteoric स्पेस से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स आर देयर. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस meteoric डस्ट फ्रॉम द स्पेस, व्हाट हैपेंस, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एंड सम वाटर वेपर. हियर द वाटर वेपर क्या है, हियर जो वाटर वेपर आता है, दैट कम्स फ्रॉम द यूजुअली सम ऑक्सीडेशन ऑफ द मीथेन. जो एटमॉस्फेरिक मीथेन है, तो दैट कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन. जो एटमॉस्फेरिक मीथेन है, ऑक्सीडेशन लाइक उसमें ऑक्सीडेशन CH4 के साथ आपका ऑक्सीजन मिलेगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ योर मीथेन. तो कुछ आपके वाटर वेपर बना सकता है पार्टिकल्स के, एंड एक्सपेक्टेड है, वेरी लीस्ट ऑब्जर्व्ड ना, रेयरली, ठीक है. दो एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड व्हाट इज द मोस्ट जो नियरली सिग्निफिकेंट जो इसका साइंटिफिक फैक्ट है, दैट इज द यहाँ क्या मेटेरिक डस्ट होता है, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ क्लाउड्स हमें ऑब्जर्व होते हैं. एंड व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर जो है, उसको क्या बोलते हैं, मेसोपॉज. आफ्टर मेसोस्फीयर इट इज द आयनोस्फीयर, and it extends from top half of the mesosphere all the way to the last exosphere, ठीक है. ये जो लेयर है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. इस आयनोस्फीयर को क्यों आयनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं, ठीक है. वो कैसे हमें आयंस बनते हैं, व्हाट इज आयन, आयन इज इधर जिसका कोई जो भी एटम है, ठीक है, व्हाट हैपेंस, उसका क्या होगा, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा. कब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इधर ये गेन या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट हैपेंस हियर इन दिस आयंस, जो इसमें यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, व्हाट हैपेंस, जो हाईली जो भी जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, या फोटॉन्स, जो भी क्वांटम्स जो एनर्जी आएंगे फ्रॉम द आउटर स्पेस, फ्रॉम द सन, व्हाट दे डू, दे नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज एटम्स. जो भी यहाँ पे होंगे जो गैशियस एटम्स जो होंगे, उनमें से क्या हो जाएंगे, नॉक ऑफ हो जाएंगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स. तो उस वजह से इनमें चार्ज कैरी हो जाता है. तो ड्यू टू जो सन से आती है स्ट्रॉन्ग यूवी एक्सरेज, पावरफुल हाईली एनर्जेटिक हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन आएगी, तो फ्रॉम दिस जो भी यहाँ पे एटम्स गैशियस एटम्स होंगे, तो उनसे वो नॉक ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं नॉक ऑफ. तो उस वजह से क्या हो जाता है, तो आयंस क्रिएट हो जाते हैं इन दिस वेरी आयनोस्फीयर. एंड दिस आयनोस्फीयर जो है, इट्स वेरी हेल्पफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ दिस इज वेरी, रेडियो ट्रांसमिशन में ही हमें हेल्पफुल होता है दिस वेरी आयनोस्फीयर. This is next is the thermosphere, that is the thickest layer in the atmosphere, extends from the mesopause to a 690 kilometer above the surface of earth. and इसमें क्या होता है, mostly in this very light, this में light gases, ठीक है, light कौन सा होता है, like oxygen, helium, hydrogen are found in this very thermosphere, ठीक है. and what happens, there is again the rapid increase in the temperature with height, because why, क्योंकि जो रियरली स्केयर्ड, इसमें क्या होते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ पे कौन आते हैं, वेरी पावरफुल हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशंस है. एंड दीज जो यहाँ पे क्या होते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन. जो यहाँ पे गैशियस मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके होते हैं, ऑक्सीजन के, दे हैव द प्रॉपर्टी absorb the radiation of this very x-rays and the ultraviolet radiations जो आपको सन से आती है. and they have a property, they absorb later, these gas molecules don't emit, ये absorb करते हैं, emission नहीं दिखाते हैं. इस वजह से क्या होता है, we witness very rapid increase in temperature with height in the thermosphere. कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, as much as 1500 degree Celsius. And the next or the last is your exosphere.
ठीक है। एक्सटेंडिंग जो अब थर्मोस्फेयर लेयर है उसको बोलते हैं एग्जॉस्फेयर, एंड जो लोवेस्ट लेवल ऑफ द एग्जॉस्फेयर रिमेंबर इज कॉल्ड एक्सोबेस। एंड फाइनली क्या होता है, वहाँ कोई कट शार्प बाउंड्री नहीं होती है। कैसे होता है मर्ज, जब हम अबो वी गो अबो एंड अबो विद द हाइट इन द एटमॉस्फेयर, व्हाट हैपेंस फाइनली आउटर स्पेस आ जाता है। क्यों? ये फाइनली वी आर गोइंग फार अवे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑब्वियसली उतनी एयर डेंसिटी कम है, उतना रेयरिफाई हो जाए, तो उतनी एयर पार्टिकल्स जो भी है गैशियस मॉलिक्यूल्स है, ग्रेविटेशन फोर्स से जितना बाहर जाएंगे उतना रेयरिफिकेशन हो जाएगा, उतना दूर दूर जाएगा आपकी गैशियस मॉलिक्यूल्स। तो सर्टेनली व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली इट मर्जेस विद द outer space, ठीक है, that it has no defined boundary as the altitude rises, it thins out until there are no air molecules left, ठीक है, almost there are no molecules left, इतना बाहर जाएंगे हम, ठीक है, अभी from the gravitational pull, and hydrogen, the lightest element in this universe, dominates the thin, कौन सा यहाँ पे सबसे dominating element है in your exhaust, it is the hydrogen, and besides some trace amounts of helium, carbon dioxide, oxygen are also present. Thank you. This is all about your atmosphere.